लगता है जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं ताकि वहां के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुंचाए, इसका ये मकसद रहता है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक सरहदी जिला है, यहाँ बहुत सारे मामला है। आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म में आप अब किस तरह देखते हो कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवारा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवारा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग या बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के इस बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारा भी कोई रोल है कि हम इन जगह को एक्सप्लोर करें ताकि सरकार की नजर या गवर्नमेंट की नजर पड़े। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पे हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर जो है टूरिज्म के, वो हमारे इसी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनसे बात होती रहती है और बाकी जितने भी आला हुकाम है, चाहे हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, उनसे भी बात होती रहती है। और ये आज पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले भी मेरी बात टूरिज्म मिनिस्टर साहब से हुई थी, कुपवारा के रिलेटेड हुई थी। आपने अभी जिक्र कर लिया, आपने बात कर लिया आपने इसमें बांडीपुरा प्लस आप लोला रोड बोल रहे थे। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आते तब भी मेरी बात हुई थी, मैंने उनको एक मेमोरेंडम दिया था कुपवारा के रिलेटेड, उस टाइम भी दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो उस टाइम कहीं ना कहीं हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ हो रही है। जहां तक ताल्लुक है बाकी चीजों का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक आपका यहाँ की आवाम का सपोर्ट ना हो तब तक वो पॉसिबल नहीं है। Sajid Saab, for the current financial year, we have everybody is criticizing the policies that you have declined the budget as compared to previous 2 years. So, what is the main reason behind this? Is the elected body here nowadays? So they are alleging that we have the elected government here. So this can also be the reason. And among 41,000 crore, approximately 10,000 is for J&K police and remaining for other flagship schemes. So what can be done more here? See, you have said that the budget has been decreased by 1,000 crore. But the fact of the matter is Jammu Kashmir is no more the state, is a union territory and it's run by the central government. And all the central schemes from the government of India are being implemented not only in the rest of the country but also in the Jammu and Kashmir. And the budget allocated to the Jammu and Kashmir is a one part, and all the central schemes including the development infrastructure or other aspects, that's also already implemented in the Jammu and Kashmir. I'll give you an example. You are aware about the tunnels, roads, the bridges and other places, the other money which is being pumped in Jammu and Kashmir, that's not in this budget. That is the excluded in this, because all the schemes which is implemented by the government of India is not included in this budget. This is a separate budget which you can use for the, I can say, the different purpose. I will give an example of the panchayat. The lot of the panchayat, the sarpanch, the other BDCs, DDCs, they got a much money to develop their own places. So those funds are for those places. And second thing is, there is a government right now, the national conference is in the government. And I think the local thing, the local issues, they need to address that thing. But we as a opposition can already, we can put the, I can say, the pressure on the those ruling party, I can say. But rest, the government of India is trying their best to take the Jammu and Kashmir, I can say, uplift Jammu and Kashmir in the well manner. कॉमन मासेस की एक मांग है कि बजट पे चर्चा बजट पास करने के बाद ही होती है। अगर ऐसा किया जाए फ्यूचर में कि पहले ही सुझाव जो है वो कॉमन मासेस से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से लिया जाए, उसके बाद ही बजट जो है वो पास किया जाए। दिस इज अ कॉमन विश एंड विल फ्रॉम द लोकल। आई थिंक जब मैं स्पीच दे रहा था तो स्पीच में मैंने इसका जिक्र कर लिया था कि जो बजट बना इट्स अ सिस्टमैटिक वे में हुआ है, इट्स अ रिकमेंडेशन ऑफ द पीपल। इसमें हर किसी वर्ग के लोगों को जो है उसमें संपर्क किया गया। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कुपवारा के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पीपल आर द, उनकी विजिबिलिटी कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज में होगी। कुछ लोग जो है बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं। हमारे यहाँ कुपवारा के जो लोग हैं, यहाँ खासकर यूथ जो है वो काबिल तरीन है। दे गिव देयर इनपुट्स एंड जो उनकी इनपुट्स है वो दिल्ली में सुनी जाती है। वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यहाँ की कुपवारा की टीम है, दे हैव देयर प्रोसीजर, सेट ऑफ रूल्स। जब आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, वो नोट करते हैं, वो ये सब बातें आगे कर लेते हैं, तब ये बजट सब चीजें डिस्कस होती है। लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, मैं आज इसलिए यहाँ पे आया था कि जब भी नेक्स्ट टाइम जो बजट हो,
लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो वहां तक सेंटर तक कैसे हो, आने वाले बजट में वो सब इंक्लूड हो जाए. How personally enthusiastic you are representing BJP media in charge Jammu Kashmir and now in your own district speaking on this topic. So how enthusiastic you are? Fact of the matter is that the Bharatiya Janata Party is world's largest party in the world, and I am one of the small worker of that party, and it's a very honor for me that I represent the party not only in the Kupwara district but in the Jammu and Kashmir. I had the media department, and we have the amazing team in BJP Jammu and Kashmir, especially in the media department that is doing the Yaman service when it comes to Jammu and Kashmir. They tried their best to, I can say, to communicate their things with the people of Jammu and Kashmir. And I am getting the kind of opportunity to speak on the particular subject. It's an honor for me. Thank you so much. Thank you.